Hi everyone, welcome back to our channel. I am going to look at all the physical geography questions from prelims 24 in this video. Not for the sake of looking at them, but just to check how helpful our content was on this channel from these questions perspective. In fact, I can claim that all the questions that were there in prelims 24 on physical geography can be answered if you would have watched our videos that we have released in last few months. Of course, some of them are yet to be released, couple of them, but most of them have been already released as far as these questions are concerned. So in this video, I'm going to look at all these questions and also going to show you the relevant part of the videos that have been released so that you understand those concepts clearly. If you have not cleared the prelims this year, I earnestly request you to subscribe to our channel because we will continue to publish such amazing videos which are well researched and well presented for all of you people. And in addition to geography, we are also releasing very helpful videos on CSAT as well. So please subscribe if you are not done so yet. So let us look at the first question. On June 21 every year, which of the following latitude experiences a sunlight of more than 12 hours? तो हमने एक्चुअली एक वीडियो रिलीज किया था 1 सितंबर 2023 को जिसका टाइटल था सीजन सिंप्लीफाइड हाउ अर्थ टिल्ट शेप्स आवर ईयर. In this video we have discussed how the tilt of the earth causes the seasons, and in this video we have clearly explained the different lengths of the day in north hemisphere and south hemisphere at different times of the year. Okay, so let us look at that part. 21 जून की पोजीशन पर नजर डालते हैं. इस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूर्य की ओर झुका हुआ होता है और इस दौरान सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है वहां पर डायरेक्टली वर्टिकल होती है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सबसे अधिक इंसोलेशन होता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बड़े पोर्शन में सनलाइट होने के कारण वहां समर होता है जिसमें दिन बड़े और रातें छोटी होती है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होता है जिसमें दिन छोटे और रातें लंबी होती है. नॉर्थ पोल पर यानी आर्कटिक सर्कल के आगे के एरियाज में सनसेट नहीं होता है क्योंकि वहां अर्थ का पूरा रोटेशन सनलाइट में ही कंप्लीट होता है जिसके कारण वहां लगातार दिन का उजाला रहता है. लेकिन यहाँ सनरेज बहुत एंगुलर होती है और इसलिए इन एरियाज में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास वाले एरियाज की कंपैरिजन में बहुत ही कम हीट प्राप्त होती है, यानी कम इंसोलेशन होता है. साउथ पोल पर सनराइज होता ही नहीं जिससे वहां कंटिन्यूस डार्कनेस रहता है. वहां पृथ्वी अपना रोटेशन डार्कनेस में ही पूरा करती है. स्क्रीन पर आप इस समय पृथ्वी के अलग अलग लैटिट्यूड्स पर दिन की लेंथ को देख सकते हैं. इस स्थिति को कहते हैं समर सोल्स्टिस. Okay, so if you have looked at the part, then you can clearly see that answer to this question is Tropic of Cancer and Arctic Circle, right? Because on June 21st, the sun is in on Tropic of Cancer, and that's why 2 and 4, that is answer number D, is the answer for this question. Let us look at the next one. Consider the following statements. The atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. Carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. Which of the following is correct in respect of the above statements? तो इसके लिए भी हमने एक रिलीज किया था वीडियो विच वॉज अनलॉकिंग अर्थ सीक्रेट्स, अ जर्नी थ्रू हीट बजट एंड बैलेंस. दिस वीडियो वॉज रिलीज्ड ऑन 23 सितंबर 2023. लेट अस लुक एट अ क्लिप फ्रॉम दैट वीडियो. टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी स्थलीय विकिरण क्या है? इंसोलेशन से गर्म होने के बाद पृथ्वी की सरफेस से वापस रेडिएट होने वाली जो हीट है उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. सूर्य से आने वाले सोलर रेडिएशन से गर्म होने के बाद पृथ्वी हीट एनर्जी को लॉन्ग वेव्स के रूप में वापस एटमॉस्फेयर में रेडिएट करती है. इस प्रोसेस को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं. इस लॉन्ग वेव रेडिएशन में से कुछ रेडिएशन एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस एब्सॉर्ब करती है और इनडायरेक्टली एटमॉस्फेयर को गर्म करती है. इन टर्न एटमॉस्फेयर इस गर्मी को स्पेस में रेडिएट करता है और इस प्रकार पृथ्वी को प्राप्त सारा इंसोलेशन वापस स्पेस में चला जाता है. This clip clearly mentions that carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. So this statement is correct, right? And if you continue to watch video, we in detail discuss all the heat budget of Earth's radiation, the receiving radiation and the radiation which gets back into the atmosphere from the Earth, right?
I'm not going to show that entire video here because that's not the purpose, but this is a screenshot of the video which shows the various amounts of heat that is received by the earth atmosphere and then reflected back in the atmosphere. So if you have studied this, then you can see that from suns, if there is 100 total radiation, 65 enters the atmosphere, whereas 35 gets reflected before reaching the earth. And then out of this 65, 14 is absorbed. So out of incoming radiation, 14 units, we are assuming 100 units here, 14 units are absorbed by the atmosphere. And these are the only units from the incoming radiation which heat the atmosphere. However, the rest 51 are absorbed by the earth and then radiated back, right? Out of which 17 gets radiated directly to the space, whereas 34 gets radiated into atmosphere in these various forms. Okay, so obviously from the terrestrial radiation perspective, earth is getting heated by 34 units, whereas from the incoming solar radiation it is getting heated only by 14 units. So obviously it gets heated more by terrestrial radiation than by incoming radiation. And if you have understood this diagram, then you can easily answer this question. The atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by terrestrial radiation. ये गलत है, हमने उल्टा देखा है कि एटमॉस्फेयर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ज़्यादा हीट होता है जबकि इनकमिंग सोलर रेडिएशन से कम हीट होता है. So this statement is wrong, this statement is correct. So here statement 2 is correct and statement 1 is wrong. So option number D is the answer. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Okay, let us go to the next one. Thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to poles. That's statement 1. At the equator, heat is transported to great heights by strong convectional currents. तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो रिलीज किया था अक्टूबर 28 को. टाइटल था अंडरस्टैंडिंग अर्थ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड प्रेशर बेल्ट. लेट अस लुक एट अ क्लिप फ्रॉम दिस वीडियो. ये एयर इक्वेटर की ओर फ्लो होती है और उसके पास आते आते वार्म होकर फिर से राइज होने लगती है. अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इक्वेटर से लेकर 30 डिग्री लैटिट्यूड तक ये एक एयर का कन्वेक्शन सेल बनता हुआ दिखाई देगा. इस सेल को कहते हैं हेडली सेल. इसका ये नाम इसलिए क्योंकि इस फेनोमेनन को जॉर्ज हेडली ने एक्सप्लेन किया था. चलो देखते हैं पोल्स पे क्या होता है. पोल्स पे ट्रोपोस्फियर की हाइट इक्वेटर से कम होती है, यानी इक्वेटर पे ये औसतन 14 to 15 किलोमीटर, तो पोल्स पे ये 7 to 8 किलोमीटर तक होती है. ऐसा इसलिए क्योंकि पोलर रीजन में इंसोलेशन सबसे कम होती है और वो रीजन एक्सट्रीमली कोल्ड है, तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. So the video actually explains that the thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to poles, और the reason भी वो वीडियो में explain किया गया है. So this statement is correct. And at the equator, heat is transported to great heights by strong convectional currents. ये भी सही है क्योंकि वहाँ पे ट्रोपोस्फियर का हाइट बहुत ज़्यादा है तो हीट भी ऊपर तक चला जाता है. Both statement 1 and 2 are correct and statement 2 explains statement. That's that. Let us go to the next one. Consider the following: pyroclastic debris, ash and dust, nitrogen compounds, sulfur compounds. How many of the above are products of volcanic eruptions? तो हमने वोल्केनोज के लिए तो बहुत लंबा सीरीज, आई थिंक 6 to 7 वीडियोज वी हैव रिलीज्ड. So there was a video which we released on January 13. The title of the video was How are volcanoes classified? What are their components and products? Let us have a look at a clip from that video. वोल्केनोज से आमतौर पर नाइट्रोजन कंपाउंड्स, सल्फर कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स के साथ साथ हाइड्रोजन, क्लोरीन और आर्गन भी निकलते हैं. ज्वालामुखी कुछ सॉलिड मटेरियल्स को भी बाहर फेंकते हैं जिन्हें पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स या टेफ्रा कहा जाता है. ये मटेरियल्स अलग अलग साइज में होते हैं. कुछ पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स है वोल्केनिक ब्लॉक जो 30 mm से बड़ा होता है, लैपिली या सिंडर जो 4 to 30 mm तक होता है, वोल्केनिक ऐश यानी राख जिसके पार्टिकल्स 0.25 से 4 mm तक होते हैं, और वोल्केनिक डस्ट यानी धूल जिसके पार्टिकल 0.25 mm से भी कम साइज के होते हैं. जब ज्वालामुखी से निकली हुई ऐश जमा होकर समय के साथ कॉम्पैक्ट हो जाती है तो ये एक रॉक बनाती है जिसे कहते हैं टफ. Obviously, all four are mentioned here.
pyroclastic materials is mentioned here, ash is mentioned here, dust is, right? It is straightforward answer. Answer to this question is all four. Very simple question. Let us go to the next one. Which of the following is our correct inference or inferences from the isothermal maps in month of January? The isotherms deviate to the north over the ocean and to the south over the continent. The presence of cold ocean currents, Gulf Stream and North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder and the isotherms bend towards the north. Okay, तो ये जो isotherms का कंसेप्ट है ये हमने डिस्कस किया था इस वीडियो में जो रिलीज किया था 30 सितंबर 23 को, अनलॉकिंग द कंसेप्ट ऑफ हीट वर्सेस टेम्परेचर एंड अर्थ एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स. लेट अस हैव अ लुक एट क्लिप फ्रॉम दैट वीडियो. आप इस मैप को देखें तो जनवरी का ग्लोबल टेम्परेचर ये मैप दिखा रहा है. तो एक आइसोथर्म, मान लो 0 डिग्री वाला आइसोथर्म, जो भी प्लेसेस को कनेक्ट कर रहा है वहां जनवरी में 0 डिग्री टेम्परेचर होगा. इसी तरह आप बाकी आइसोथर्म्स भी देख सकते हो. इस तरह के मैप्स में टेम्परेचर पर लैटिट्यूड का प्रभाव हम अच्छी तरह से देख और समझ सकते हैं. जनरली आइसोथर्म्स लैटिट्यूड लाइंस को पैरेलल चलती है. मतलब जनरली एक लैटिट्यूड पे टेम्परेचर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मोर और लेस सेम होता है. लेकिन इस नॉर्मल ट्रेंड से हमें डेविएशन भी देखने को मिलता है और ये डेविएशन स्पेशली नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमें जनवरी में ज़्यादा दिखाई देता है. हम जानते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में जनवरी में विंटर होता है. जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं जनवरी में नॉर्थ हेमिस्फीयर में आइसोथर्म्स -25 डिग्री तक जा रही है. लेकिन एक बात को ऑब्जर्व करना, आइसोथर्म्स ओशनिक एरियाज में नॉर्थ की ओर बेंड हो रही है और कॉन्टिनेंटल एरियाज में फिर से क्विकली नीचे आ रही है. तो ये लंबा क्लिप था लेकिन सारे कंसेप्ट इसमें एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किए गए थे. तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि द आइसोथर्म्स डेविएट टू द नॉर्थ ओवर द ओशन एंड टू द साउथ ओवर द कॉन्टिनेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. अभी यहाँ पे देखो द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड ओशन करंट कहा है, राइट? जबकि आपने वीडियो में देखा कि ये सारे जो है गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये हॉट स्ट्रीम्स है. ओके, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Select the answer using code below, one only. And number A. Let us go to the next one. With reference to water vapor, which of the following statements is correct? It is a gas, the amount of which decreases with altitude. Its percentage is maximum at the pole. Okay. Select the answer using the code given below. तो इसके लिए जो वीडियो है वो हमने अभी तक रिलीज नहीं किया है. दिस वीडियो विल बी पार्ट ऑफ आवर अपकमिंग ज्योग्राफी कोर्स. लेट अस हैव अ लुक एट अ क्लिप फ्रॉम दैट वीडियो. हीट लैंड के पास ज़्यादा होती है और जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता है. ऑब्वियसली वाटर वेपर भी लैंड और ओशन पे ज़्यादा होता है और जैसे एल्टीट्यूड बढ़े वो डिक्रीज होता है. ऑब्वियसली एज एक्सप्लेन इन द वीडियो इट इज़ अ गैस, द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विथ एल्टीट्यूड इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. इट्स परसेंटेज इज मैक्सिमम एट द पोल्स. तो ये जो वीडियो का वाटर इन द एटमॉस्फेयर का जो हमारा सीरीज होगा हमारे कोर्स में उसमें ये बहुत सारा डिटेल में डिस्कस किया गया है. आपको लॉजिकली भी इसका आंसर ढूंढ सकते हो कि हीट इज मोर अराउंड द इक्वेटर, सो द परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर विल बी मैक्सिमम अराउंड इक्वेटर, whereas heat is less and that's why evaporation is less at the poles. That's why it will be minimum at the pole. Air will be very dry. This statement is wrong. This statement is correct. Answer is one only. Okay. Let us go to the next one. With reference to Coriolis force, which of the following statements are correct? It increases with increase in wind velocity. It is maximum at the poles and is absent at the equator. तो इसका जो वीडियो है वो भी हमारे कोर्स का पार्ट होगा. तो उसका एक क्लिप देखते हैं. कोरियोलिस फोर्स. हमें पता है कि अर्थ अपने एक्सेस पर रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में. तो जो हॉट एयर इक्वेटोरियल रीजन से नॉर्थ की ओर जाती है वो इस रोटेशन के कारण राइट की ओर डिफ्लेक्ट होती है और जो कोल्ड एयर नॉर्थ पोलर रीजन से साउथ की ओर आती है वो राइट की ओर डिफ्लेक्ट होती है. ये एक बेसिक रीजन है साइक्लोन के फॉर्मेशन का जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं. इसके बिल्कुल उल्टा सदर्न हेमिस्फीयर में होता है जहां पोलर रीजन से आने वाली एयर लेफ्ट को तो इक्वेटोरियल रीजन से आने वाली एयर राइट को डिफ्लेक्ट होती है.
और सदर्न हेमिस्फीयर में होने वाले साइक्लोन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। इस नियम को फेरेल्स लॉ ऑफ डिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। यहाँ यह समझना कि जो लेफ्ट और राइट की हम बात कर रहे हैं वो विंड के डायरेक्शन के रिलेटिव है और ना कि व्यूअर की दृष्टि से। पृथ्वी के रोटेशन के कारण ये जो फोर्स विंड की डायरेक्शन को प्रभावित करता है उसे कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। 1844 में इस फोर्स को पहली बार डिस्क्राइब करने वाले फ्रेंच फिजिसिस्ट के नाम से इसे कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आइसोबार को परपेंडिकुलर होता है और ये कोरियोलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर रहती है, वही आइसोबार के पैरेलल रहती है। कोरियोलिस फोर्स पोल्स पर सबसे अधिक होता है जबकि इक्वेटर पर इसका अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो में बहुत डिटेल में कोरियोलिस फोर्स के बारे में डिस्कस किया गया है एंड इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड इन द वीडियो इटसेल्फ दैट इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एट द इक्वेटर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज़ डायरेक्टली मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। तो करेक्ट पूछा है, तो नाइट both 1 and 2 is the answer. So that's all. So we have looked at all the physical geography questions, and as you can see that our videos have been very helpful in answering all these questions. So my earnest request, if you are appearing for 25 or even for 24 mains, please subscribe to our channel because we are really spending a lot of effort in researching these topics, looking at the PYQs and making sure that right content is included in the video. We are soon going to launch our geography course, which will have all these animated videos with their notes and their quizzes. So if you have not downloaded our app, please download so that you get notified as soon as we release the course. A link of the app is in the description. So thanks for watching and subscribing. I will see you in the next video. Thank you.